Bismillahirrahmanirrahim. Children, I am Zarina, teacher from National Urdu High School, Kalyan. Today, in this session, we are going to learn the poem of our 10th Standard English course book, unit number 2.3, The Twins. This poem is written by Henry Sembrook Lake. This is a humorous poem about a pair of twin brothers. ये पोएम जुड़वा भाइयों के बारे में है. The twins in the poem are so alike that no one can identify them separately. इस पोएम में दोनों भाई इतने एक जैसे दिखाई देते हैं कि कोई भी उन्हें अलग अलग पहचान नहीं सकता. Due to this, funny and humorous things happened and they make us to laugh. Children, there are 4 stanzas in the poem. This poem is called octave. It means in each stanza there are 8 lines. This poem is written in a lighter vein. यानी ये पोएम हल्की फुल्की तर्ज की है to amuse the readers, ताकि पढ़ने वाले इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सके. The poet was extreme exaggeration. इस पोएम को पोएट ने बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई के साथ पेश किया है to achieve this effect, इस इफ़ेक्ट को अचीव करने के लिए. Children, let's start the poem. In form and feature, face and limb, I grew so like my brother that folks got taking me for him and each for one another. It puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch. For one of us was born a twin, yet not a soul knew which. The narrator was one of a pair of twins. यानी इस पोएम का जो रावी है, लिखने वाला, वो ट्विंस में से एक है. And right from birth, he and his brother were similar in form and feature, face and limbs. The resemblance was so close that people began mistaking one for the other. All relatives and friends were confused, means puzzled, and at times the confusion reached a very high level pitch. It was certain that one of them was born a twin, but no one knew for sure which of them was it. इस स्टैंजा में रावी कहता है कि शक्ल सूरत और आज़ा में वो अपने भाई, जुड़वा भाई की तरह ही दिखाई देता था. इतना आइडेंटिकल, इतना सिमिलर था कि लोग, फोक्स का मतलब है यहाँ लोग, उसे समझते उसके भाई को देखकर और ऐसा ही एक दूसरे के लिए समझते. उनकी ये सिमिलैरिटी कंफ्यूज करती उनके सारे कित एंड किन को. ये फ्रेज़ है, एक्चुअल में ये कोलोकेशन है. कोलोकेशन का मतलब है अ सेट ऑफ वर्ड्स गो टुगेदर और ऑकर टुगेदर, यानी एक जैसे अल्फाज का मजमुआ जो एक ही मतलब ज़ाहिर करता हो. उनकी ये सिमिलैरिटी उनके सारे कित एंड किन को, कित एंड किन का मतलब है दोस्त व अहबाब, को कंफ्यूज कर देती. और उनकी ये सिमिलैरिटी एक खौफनाक हद पर पहुंची क्योंकि उनमें से एक जुड़वा पैदा हुआ और उनके रूह को भी नहीं पता कि वो कौन था. यहाँ हमारा पहला स्टैंजा कंप्लीट हुआ. Stanza. One day, to make the matter worse, before our names were fixed, as we were being watched by a nurse, we got completely mixed. And thus, you see, by fate's decree, or rather nurse's whim, my brother John got christened me, and I got christened him. Children, second stanza में poet हमें नरेट करता है कि वन डे जस्ट बिफोर देयर क्रिसनिंग से मुराद है क्रिसन डैम नेम, यानी नाम रखा जाना. एज दे वेर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, जब वो नर्स के ज़रिए नहलाए जा रहे थे, दे गॉट इंटरचेंज, यानी वो आपस में मिक्स हो गए. थस इट वॉज आइदर ड्यू टू द नर्सेज मिस्टेक, तो इसलिए या तो फिर ये नर्स की गलती कहें या बिकॉज ऑफ डेस्टिनीज डिसीज़न, या किस्मत का लिखा कहें. यहाँ फेट्स डिक्री का मतलब है किस्मत का लिखा. The narrator's brother got the name John intended for the narrator.
नरेटर के भाई को जॉन नाम मिल गया जो एक्चुअल में उसके लिए रखा गया था, एंड द नरेटर गॉट द नेम इंटेंडेड फॉर हिज ब्रदर, और नरेटर को वो नाम मिल गया जो उसके भाई को रखा जाने वाला था। यहाँ हमारा सेकेंड स्टैंजा कंप्लीट हुआ। लेट्स सी द थर्ड स्टैंजा। दिस fatal likeness even dogged my footsteps when at school, and I was always getting flogged, for John turned out a fool. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me, to prove that you were you? In this stanza, the narrator says that the likeness had very bad and serious effects. यहाँ फैटल का मतलब है सीरियस, मोहलिक, जानलेवा, एंड फॉलोड द टू लाइक अ शेडो ऑल थ्रू देयर लाइव्स। उनकी ये मुशाबहत साय की तरह उनकी ज़िंदगी भर उनका पीछा करती रही। एट स्कूल द नरेटर वॉज यूजुअली पनिश्ड फॉर द मिस्टेक मेड बाय हिज ब्रदर। स्कूल में भी नरेटर को पनिश यानी सज़ा मिलती क्योंकि उसका भाई जॉन गलती करता। The narrator put the following questions to everyone he knew. Fruitlessly, यहाँ fruitlessly का मतलब है बेकार में, यानी वो जानता था कि उसका कोई जवाब उसको नहीं मिलने वाला। हर एक से पूछता था कि दो विदाउट गेटिंग अ डेफिनेट आंसर, यानी उसे पता था उसको इसका जवाब नहीं मिलने वाला। What he would do, वो क्या करते, इन ऑर्डर टू प्रूव हिज आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी को साबित करने के लिए, इफ़ ही वेर इन हिज यानी द नरेटर्स प्लेस, कि अगर वो नरेटर की जगह पर होते। यहाँ पर हमारा थर्ड स्टैंजा कंप्लीट होता है। चिल्ड्रन, लेट्स सी द लास्ट स्टैंजा। आवर क्लोज रिजेम्बलेंस टर्न्ड द टाइड ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, फॉर समहाउ माई इंटेंडेड ब्राइड बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ। In fact, year after year, the same absurd mistakes went on. And when I died, the neighbors came and buried brother John. In the last stanza, the narrator have to say that even the narrator's domestic life was affected by this close resemblance. यानी उनकी ये जो क्लोज रिजेम्बलेंस थी, करीबी मुशाबहत थी, ये उनकी घरेलू ज़िंदगी में भी दखल असर कर गई, इसलिए कि फॉर इट टर्न्ड आउट दैट द गर्ल ही इंटेंडेड टू मैरी, जिस लड़की से उसकी शादी होना था, इंटेंडेड का मतलब है इंटेंडेड टू मैरी, यानी जिससे वो शादी करने वाला था, उसकी जो मंगेतर थी, बिकेम हिज ब्रदर्स वाइफ, वो उसके भाई की बीवी बन गई। ईयर आफ्टर ईयर द सेम एब्सर्ड मिस्टेक्स, यहाँ एब्सर्ड मिस्टेक्स ये भी कोलोकेशन है क्योंकि ये दोनों वर्ड जो है एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट है। एब्सर्ड का मतलब है अहमकाना, मिस्टेक्स गलतियाँ, वेंट ऑन यानी कंटिन्यूड जारी रही, विद द रिज़ल्ट दैट व्हेन द नरेटर डाइड, और लास्ट में ये रिज़ल्ट हुआ कि जब नरेटर डाइड हुआ, द नेबर्स केम एंड बरीड हिज ब्रदर जॉन, तो नेबर आए और उसके भाई जॉन को बरीड कर दिया। बरीड से मतलब है दफन कर दिया। मिस्टेकिंग हिम फॉर द नरेटर्स हिमसेल्फ, ये सोच के कि वो नरेटर को दफन करें, बरीड करें। चिल्ड्रन, आई होप you had listened the poem very carefully and enjoyed the poem thoroughly.